Namaste, dear children. Here I am back with my next video on chapter Resources and Development. In my last video, I have explained you land resource in detail. Now our next resource is soil resource. What is soil? The uppermost layer of land is soil. This soil is very important as it is a medium of plant growth. Soil is a renewable resource. So, why there is need of protection or conservation of soil if it is a renewable? Its rate of formation is very, very slow. It takes millions of years to form 1 centimeter thick soil. And the rate of erosion of soil is very fast. So that is why, in spite of it is a renewable resource, there is need of its conservation. So soil is of many types. There are different types of soil. On what factors? We will not do it this in detail. हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि इस soil जो इतने तरह तरह की होती है, what are the factors responsible for their difference? It is due to the nature of parent rock, climate, vegetation, and time. These are the factors which are responsible for difference in soil type. Only you should know what are the factors, only you should know the names. Number 1, the nature of parent rock. जैसा पेरेंट होगा वैसे ही सॉइल बनेगी. ये जो बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक चौक है. चौक इज अ लाइमस्टोन. उस चौक को मैंने तोड़ा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. फिर चौक को तोड़ा, वेदरिंग, फर्दर वेदरिंग, और लास्ट में हमको चौक का क्या मिलता है? पाउडर. तो चौक का पाउडर भी व्हाइट कलर का है और जो रॉक है लाइमस्टोन वो भी व्हाइट कलर की है. तो जिस मिनरल में रॉक रिच होगी उसी मिनरल में सॉइल भी रिच होगी. If the rock has more iron content, then the soil formed of that rock, weathering of that rock will have more iron content. The soil will be rich in iron content. So the parent rock is very important factor for the formation and difference in soil type. Then what type of vegetation grows there, how much time is given to that soil, what is the climate of that area also decides the type of soil. Okay, next we will take classification of soil. Classification of soil. First is alluvial soil. Alluvial, from the word alluvium. What is alluvium? Alluvium is the sediments. Sediments which are brought down by the rivers and deposited. That soil which is formed by the deposition of alluvium, or you can write sediments, is known as alluvial soil. तो अगर कभी भी आपको किसी भी सॉइल के फीचर्स पूछते हैं तो पहला पॉइंट हमने हमेशा उसकी फॉर्मेशन का लिखना है. कैसे बनी ये? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. एल्यूवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. नंबर 2, वेयर दिस सॉइल इज फाउंड. डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ मिलती है इंडिया में? Distribution, it is found in entire northern plains. The entire northern plains is formed of alluvial soil. Our eastern coastal plain is formed of alluvial soil. Then we have some smaller areas in Gujarat and Rajasthan too. Next is, this soil is of two types on the basis of their age. Old alluvial soil and new alluvial soil. Old alluvial soil is called बांगर. याद रखना बेटा, इसमें गलत नहीं करना है. Old alluvial soil is बांगर and new
alluvial soil is खादर. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको आना चाहिए. एक तो दिस इज ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, दिस इज न्यू एल्यूवियल सॉइल. ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इज कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल. अगर आप ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली इट इज लेस फर्टाइल, देन इट इज रॉन्ग, क्योंकि इट इज एल्यूवियल सॉइल विच इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. ये सबसे फर्टाइल सॉइल है बेटा. तो अगर हमको इस पर डिफरेंस लिखना है तो हमको वर्ड यूज करना पड़ेगा कंपैरेटिवली. बांगर सॉइल इज कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल, खादर सॉइल इज वेरी फर्टाइल. द soil particles are little coarse in Bangar and soil particles are very fine in Khadar. Bangar soil is found away from the rivers, but Khadar soil is found close to the rivers. So these are the some point of difference between Bangar and Khadar. Number 4 is this soil is very rich in potash, phosphorus and lime. ये 3 minerals हैं. This soil is very rich in potash, phosphorus and lime. Number 5 you can write, this soil is intensively cultivated. इस सॉइल में हम बहुत ज़्यादा खेती करते हैं. इंटेंसिवली का मतलब होता है वी यूज इट टू इट्स मैक्सिमम. इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. सो इट इज 5 points are sufficient. दिस इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया. इसको भी आप यहाँ पर बिगनिंग में लिख सकते हैं, मोस्ट फर्टाइल एंड मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल. ये भी 1 नंबर में आता है बेटा क्वेश्चन. विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया? मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल. सो दिस इज एल्यूवियल सॉइल. सेकेंड सॉइल आफ्टर एल्यूवियल इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल, as the name suggests, it is black in color. Black soil, इसका दूसरा नाम कॉटन सॉइल भी होता है. इसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं. दिस सॉइल इज फाउंड इन द मेन. सबसे पहले इसका फॉर्मेशन, हाउ इट इज फॉर्म्ड. दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक. वॉल्केनिक, कभी वॉल्केनो आया होगा, उसका लावा स्प्रेड हुआ होगा, उस वॉल्केनिक लावा को वेदर्ड होके जो सॉइल बनती है उसे हम कहते हैं ब्लैक सॉइल. वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स. याद रखना है बेटा, वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. कौन सी रॉक्स? वॉल्केनिक रॉक्स. सो ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स. Number 2, this soil is clayey. Clayey in nature, or you can write it has very fine clayey soil particles, very fine, and it has ability to hold moisture for a very long time. जैसे आप छोटे बच्चों को क्ले खेलने के लिए देते हैं, जो बिल्कुल प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको अपनी फिंगर्स की मोटर स्किल्स को तेज करने के क्ले देते हो. क्ले को पहले राउंड करेंगे, स्नेक बनाएंगे, बॉल बनाएंगे, कुछ भी शेप्स बनाएंगे, फिर उसे बंद करके रख देंगे. नेक्स्ट डे दे अगेन प्ले विद द सेम सॉइल, क्लेई सॉइल. व्हाई क्ले इज गिवन टू देम? बिकॉज क्ले हैज capacity to hold moisture for a long period of time. So clay soil is black soil. यहाँ पर आप लिख सकते हैं it retains moisture for a long period of time. It retains moisture. Number 3, where it is found in India? Northwestern part of Deccan Plateau. पूरा मैप स्किल जब कराएंगे तब दोबारा दिखाएंगे आपको. पूरा जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है दक्कन प्लेट्यू का, वो कंप्लीटली हमारा ब्लैक सॉइल के अंडर है, जिसमें गुजरात,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये थोड़ा सा पार्ट ऑफ कर्नाटका, दिस इज अंडर ब्लैक सॉइल. This soil is fourth number, where the 3 points are sufficient. The fourth point is this soil should be immediately plowed after first monsoon. Monsoon की पहली बारिश के बाद इसकी खुदाई हो जानी चाहिए. अगर हमने उसको नहीं प्लो किया है तो इट बिकम्स वेरी वेरी स्टिकी. तो immediately this soil to be tilled after monsoons. और अगर इसको, पहले मैंने क्या बताया था कि इसमें रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर इसको बहुत समय तक मॉइस्चर नहीं मिला क्लेई सॉइल को, वैसे तो इसमें कैपेबिलिटी होती है लेकिन काफ़ी समय तक बारिश नहीं हुई, तो ये सॉइल में डीप क्रैक्स डेवलप इन दिस सॉइल. यू कैन सी इन दिस फिगर दैट हाउ द डीप क्रैक्स आर डेवलप्ड इन दिस सॉइल. Next soil is red and yellow soil. Red and yellow soil का सबसे पहले formation. How this soil is formed? Weathering of igneous rocks. The rock which is rich in iron content. Igneous rock कैसे बनती है? Solidification of lava. Lava में क्या होता है ज़्यादा? Iron. So this soil is red in color because it is formed by weathering of igneous rock. इसको याद रखना बेटा, इसमें igneous लिखा है, पहले वाली में हमने ब्लैक में volcanic rocks लिखा था. Igneous rocks. This soil is comparatively less fertile. ये काफ़ी less fertile soil है. और नंबर 3, ये कहाँ ये मिलती है? Where it is found? Distribution कहाँ है इसका? ये पूरी ईस्ट एंड साउथ, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ब्लैक सॉइल के पूरे जगह को घेरा हुआ है इस सॉइल ने. सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज रेड सॉइल. दिस सॉइल appears yellow. इसको येलो भी तो बोला है. This soil appears yellow in color when it is hydrated. हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड मतलब जब ये वेट होती है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, देन दिस सॉइल अपीयर्स येलो इन color. This soil is less fertile, but it is put under agriculture with heavy doses of chemical fertilizer. हमने ये नहीं कि इसको छोड़ रखा है. We do farming in this soil also, but with the use of chemical fertilizer, this soil is put under farming. Okay, next type of soil is beta laterite soil. Laterite soil का जो फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट है. Laterite soil is formed by intense leaching. इंटेंस लीचिंग सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, किसी भी सॉइल में उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए. लीचिंग का मतलब क्या होता है? इन द mountainous areas, in slopy areas, and in the areas of heavy rainfall, the top layer of the soil is washed off by heavy rains. एंड द सेकेंड लेयर जो उसके नीचे की कोर्स सॉइल होती है, उसको हम कहते हैं लेटराइट सॉइल. तो लेटराइट सॉइल कहाँ मिलेगी? जो भी थोड़े स्लोपी एरियाज होते हैं, माउंटेनियस और हिली एरियाज, और द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल. Due to heavy rainfall, the soil, the top layer of the soil easily washed away with the water because it is heavy rainfall, and second it is a slopy area. So the top layer gets washed off, and the second layer, जो दूसरी layer जो आती है ऊपर, वो बड़ी कोर्स पथरीली जमीन होती है, उस soil को हम कहते हैं laterite soil. तो मैंने आपको केवल अभी लीचिंग का मतलब बताया. लीचिंग means removal of top layer of soil due to heavy rains in mountainous और hilly areas. So intensive leaching से ये लेटराइट सॉइल बनती है. ये सॉइल भी हमारी लेस फर्टाइल की कैटेगरी में आती है.
लेस फर्टाइल कैटेगरी में आती है। इसको भी हम हेवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर करके इसको कल्टीवेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ मिलती है? दिस सॉइल इज फाउंड इन ऑल द हिली एरियाज। हिली एरियाज में मिलेगी ये सॉइल, कहीं प्लेन एरियाज में नहीं मिलेगी। वेस्टर्न घाट्स का कुछ पार्ट है जो हिली एरियाज, वहाँ ये मिलती है। थोड़ा सा ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। इन द साउथ ऑल्सो, इन द हिली एरियाज ऑफ नीलगिरी एंड ऑल, दिस सॉइल इज फाउंड। नाउ नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल इज की जगह आप सैंडी सॉइल भी आपसे पूछ सकते हैं, डेजर्ट सॉइल भी इसको बोल सकते हैं। दिस सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये लाइन हमको अच्छे से याद रखनी है। इसका टेक्सचर, इसको छुएंगे तो ये सैंड की तरफ होती है, और सलाइन, और जरा सा टेस्ट करो तो ये सलाइन होती है, सॉल्टी सॉइल होती है। Number 2, this soil is also comes under the category of less fertile soil. This is less fertile soil. It lacks humus and moisture content. इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों की कमी है। अब डेजर्ट एरिया है तो वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन नहीं है तो यहाँ पर ह्यूमस की कमी है, और इतनी लूज है बिकॉज इट रेन्स वेरी लेस इन डेजर्ट एरियाज, सो इट लैक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट। ये कहाँ पर मिलती है इंडिया में? वेयर इट इज फाउंड? हमने हर सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। इट इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। पूरा राजस्थान नहीं लिखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, दैट इज थार डेजर्ट. Our Thar desert is completely under the sandy soil. Next is, after arid soil, our last type of soil is forest soil. अब बिल्कुल सैंडी सॉइल के ऑपोजिट है फॉरेस्ट सॉइल। सैंडी में क्या था? लैक ऑफ मॉइस्चर, लैक ऑफ ह्यूमस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेजिटेशन। अब फॉरेस्ट सॉइल तो वहीं मिलेगी जहां फॉरेस्ट होंगे। फॉरेस्ट मतलब डेंस वेजिटेशन, और बिकॉज इट इज डेंसली, इट हैज डेंस वेजिटेशन, दिस सॉइल इज वेरी रिच इन ह्यूमस कंटेंट, humus which makes the soil fertile. So forest soil is found, first of all, where it is found? In the forested areas. जहाँ जहाँ forest होंगे वहाँ पर ये soil मिलेगी, forested areas. This soil is very rich in humus content. Number 3, this soil in the snow covered area, it does not mean that everywhere it is it has rich humus content. जहाँ forest होंगे वहाँ पर ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा, लेकिन माउंटेन्स में जैसे 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 हम ऊपर चढ़ते हैं, आफ्टर स्नो लाइन इट इज़ कम्प्लीटली अंडर द कवर ऑफ स्नो। जहाँ फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पर ये सॉइल में ह्यूमस नहीं होगा। सो जब हमने लिख दिया फॉरेस्टेड एरियाज, तो फॉरेस्टेड एरियाज में जहाँ फॉरेस्ट हैं वहाँ पर दिस सॉइल इज very rich in humus content, but you have to mention that in the areas of snow covered mountains, snow covered होंगे तो वहाँ पर ना तो vegetation होगी और वहाँ पर low humus content होगा soil में. Okay, so this was about the classification of soil. Now the last topic is left, soil erosion and soil conservation. सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की क्या डेफिनेशन देंगे हम? सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर, विंड or any other source of gradation is called soil erosion. Removal of top layer is soil erosion. Top layer कौन सी होती है? जो सबसे fertile होती है. Top layer of soil by running water or wind is known as soil erosion. Soil erosion is of two types. Soil दो तरीके से erode होती है बेटा.
एक को हम कहते हैं गली इरोजन और एक को हम कहते हैं शीट इरोजन. व्हाट इज गली इरोजन? गली इरोजन मीन्स ये कहाँ पर होगा? ये वाटर से होता है और ये विंड से होता है. ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा याद रखेंगे. गली इरोजन में क्या होता है बेटा कि जब पानी बहुत तेजी से किसी स्लोपी एरिया में बहता है, स्लोप है और बारिश का पानी बहे, तो पूरा पानी कभी भी एक साथ नहीं नीचे आता. पानी नीचे जाएगा बट बाय मेकिंग स्मॉल स्मॉल चैनल्स, और पानी उसी चैनल से बहता जाता है और वो चैनल्स डीप होती जाती हैं. These deep channels are called gullies. These are called gullies. And the land which is eroded by gullies, by these deep channels, are known as badlands. Why it is called badland? Because the land which is eroded by gully erosion becomes unfit for cultivation. You cannot put that land under cultivation once that land is eroded by gully erosion. So gully erosion कहाँ पर होगा? In the slopy areas. कैसे होगा? By running water. When water runs down the slope by making deep channels, these channels are called gullies, and the land eroded by gullies is called badland. इसका एग्जाम्पल है बेटा रिवर चंबल मध्य प्रदेश में. इसकी जो बहुत गहरी जो चैनल्स बन गए हैं उनको क्या बोला जाता है मध्य प्रदेश में? रिवर जो चंबल ने बनाया है इसको वो बोलते हैं रेवाइन्स इन रिवर चंबल. रेवाइन्स होते हैं वही डीप चैनल्स. तो ये एग्जाम्पल है पहले टाइम पर जब साइबर क्राइम नहीं होता था या हाईटेक क्राइम नहीं होते थे. पुरानी पिक्चरों में देखो जैसे घोड़े दौड़ते हैं, उनके ऊपर डेकॉइट्स बैठे होते हैं. इस चंबल की घाटी में इस जगह पर बहुत सी फिल्म्स शूट की जाती थी क्योंकि जो बड़ी बड़ी रेवाइन्स थी ये डेकॉइट्स को छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह होती थी. तो ये दिस soil is completely unfit for cultivation. It is badland. So now second is wind erosion. By wind only the thin layer of soil is washed off by the winds, blow off by the winds. और उसके बाद दूसरी लेयर में you can do farming. बट द फर्स्ट टॉप लेयर जैसे शीट होती है, शीट इसको कहते हैं, शीट क्यों कहते हैं? जैसे बेड शीट होती है, बेड शीट उठाई तो पतली सी शीट फ्रॉम द बेड इज रिमूव्ड. सिमिलरली द लैंड विच इज विदाउट वेजिटेशन, विच इज विदाउट एनी कवर ऑफ ग्रास और बहुत तेज हवा चलती है तो एक थिन लेयर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स ब्लोन अवे बाय द विंड. दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन. इट इज बाय विंड. और अब इसके हम पढ़ते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन. वी विल डिवाइड सॉइल कंजर्वेशन इनटू 2 पार्ट्स. पूरा एक साथ लिखने से अच्छा है, इसको 2 में डिवाइड करते हैं. सॉइल कंजर्वेशन इन 2 parts, in plain areas and in hilly areas. Plain का मतलब होता है in desert areas and in hilly areas, mountain areas. In desert areas में हमें क्या करना है? शेल्टर बेल्ट लगानी है. अभी बताई थी आपको लैंड कंजर्वेशन में भी शेल्टर बेल्ट means a row of trees to be grown in a line so that the desert soil, जो अभी पढ़ी थी sandy soil, which is easily blown away by the wind, can be stopped, or the speed of the wind can be stopped by the shelter belts. Number 2 in desert areas is strip cropping. स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे हम खेत
खेत में एक लाइन हमने अपनी क्रॉप की लगाई, एक लाइन ऊंची ऊंची ग्रास की लगा दी, घास की, फिर एक लाइन क्रॉप की लगाई, फिर एक लाइन घास की लगा दी। बस ये घास किस लिए है? टू ब्रेक द फ्लो ऑफ द विंड। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग कैन बी डन। तो 2 मेथड्स इन डेजर्ट एरियाज, इन हिली एरियाज। फर्स्ट मेथड इज step farming or terrace farming. If there is need to grow crops in the hilly areas also, वैसे तो माउंटेन्स में हमको एग्रीकल्चर करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन भारत जैसे देश में वेयर द लैंड इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, वी हैव टू ग्रो क्रॉप्स इन द हिली एरियाज. तो इन हिली एरियाज वी हैव टू मेक स्टेप्स so that the soil erosion can be reduced. Number 2 can be done is contour plowing. Contour plowing का मतलब क्या होता है बेटा? कि we have to raise the लेवल ऑफ द लैंड. एक ही कंटूर में, कंटूर मीन्स हाइट, ये नहीं कि ये इसकी हाइट आधा है यहाँ पर खेती कर रहे हैं, इसकी कम है यहाँ पर खेती कर रहे हैं, इससे पूरे बहुत इजीली इट कैन बी, द सॉइल कैन बी वॉश्ड ऑफ बाय द रनिंग वाटर. तो आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं बंस एंड हिंदी में कहते हैं मेड़. हम लोग पूरे खेतों में ऊंची ऊंची बराबरी की हाइट की मेड़ बना देते हैं, जिससे कि running water can be stopped. So contour plowing and step farming can be done in hilly areas to reduce soil erosion, and shelter belts and strip cropping to be done in desert areas to reduce soil erosion. Okay, this was the last topic of this chapter. In my next video, we will take map skill of this chapter and exercise questions and PYQs, previous year board questions. Okay, thank you. Have a nice day.